key ratios of special angles. इसमें सेट 1 जो आएगा हमारा वो आएगा 18 डिग्रीज, 36 डिग्रीज, 54 डिग्रीज, 72 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। ये सबसे टिपिकल है। इसके बाद के दो है वो इतने मुश्किल नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, याद करने में भी थोड़ा मुश्किल होता है। बट देयर इज अ वेरी गुड, देयर इज अ वेरी गुड। Just one, can you please tell what you just said? And we've just started, beta. I'm just telling that this is the largest set of special angles that we are going to deal with. The other two sets that we are going to deal with are much easier. Although isme there is a very good pattern, so it will not be a very difficult task to remember the values. I'll tell you what the pattern is. Pehle generate kar lete values. So let's say we are starting with theta equal to 18 degrees. So we will say 5 theta is equal to 90 degrees. So we can say 2 theta is equal to 90 minus 3 theta. So sine 2 theta is sine of 90 minus 3 theta. Say that sine 2 theta is equal to cos 3 theta. अभी जो sin 2 theta is equal to cos 3 theta है, इसमें sin 2 theta को हम 2 sin theta cos theta लिख देंगे और cos 3 theta को लिख देंगे 4 cos cube theta minus 3 cos theta. इसमें से एक cos कैंसिल कर दो, you are left with 2 sin theta into 4 into 1 minus sin square theta by identity minus 3. ठीक है, so this becomes 4 sin square theta plus 2 sin theta plus 4 minus 3, 1 minus 1 equal to 0. तो sin theta का जो वैल्यू आएगा that will be minus 2 plus minus under root of 4 plus 16 whole divided by 8. That is minus 2 plus minus 2 under root 5 divided by 8, which can also be written as minus 1 plus minus under root 5 divided by 4. This is sine of 18 degrees. Obviously sine 18 degree दो वैल्यू नहीं होगी, हमें पता है फंक्शन में दो वैल्यू अलाउड नहीं होती। और हम वैल्यू ये जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, बिकॉज वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर √5 - 1/4 होगा क्योंकि दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव है। सो दिस इज योर साइन ऑफ 18 डिग्रीज, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। पहले आप इसे नोट करो फिर बाकी बताता हूँ।
So in the exam, are we told to derivate the formula also? Like questions based on that? Or just the final value? No, you'll be required to solve questions based on the formulas. Okay, sir. Done. Yes, sir. सबने नोट कर लिया? कोई बाकी है? Okay, I'll go to the next one. This is cos of 18. Answer. Okay, अब हम बनाएंगे sin 36. Which we can also write as 2 sin 18 cos 18. So 2 into sin 18 into cos 18. अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे. ये 4 into 4 16 और 1/8 करके बाहर लिख देंगे और एक बड़े अंडर रूट में 6 minus 2 root 5 into 10 plus 2 root 5 करेंगे. ये 6 minus 2 root 5 कहां से आया समझे ना. रूट 5 minus 1 का होल स्क्वायर कर दिया अंडर रूट के अंदर लिखने के लिए. तो दिस becomes 60 plus 12 root 5 minus 20 root 5 minus 20. 40 minus 8 root 5. 4 बाहर निकाल लो. 1/4 under root 10 minus 2 root 5. Now if you see closely, sin 36 is conjugate of cos 18, and when you find cos 36, 1 minus sin square 36, so 10 minus 2 under root 5 by 16. So this becomes 16 minus 10, 6 plus 2 root 5 by 16, which is actually root 5 plus 1/4. So this is actually conjugate of sin 18. तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ पेयर्ड रहेंगे. ठीक है. Also when you know sin 18,
you know cos 72, complementary angles. When you know cos 18, you know sin 72. When you know sin 36, it is the same as cos 54. And when you know cos 36, it is the same as sin 54. Okay, so that completes our 18, 36, 54, 72, this entire set. We have found 18 and 36 और ये complementary खुद ही मिल जाएंगे. Complete करो. तो वो 6 माइनस 2 रूट 5 कैसे आया? हाँ जी. 6 माइनस 2 रूट 5 कैसे आया? ये वाला उसके राइट पे. कहाँ पे? ये वाला. यस सर. ये जो √5 - 1 है ना, इसको इस अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा ना. ओके सर. हाँ. हो गया नोट? सर 1 मिनट. 2 मिनट रुक जाओ. डन. बाकी लोग को एक बार करने दो बेटा.
गया? Yes, sir. Done, all of you? Yes, sir. Okay. Now let's go to set 2. ये वाला सेट, इसमें हमको 45 और 90 पता है, ये दोनों पता करने हैं हम। 22.5 के लिए हम क्या करेंगे? We will use the formula sin theta is under root of 1 minus cos 2 theta upon 2. So we can say it is 1 minus cos 45 upon 2. यानी ये हो जाएगा under root of root 2 minus 1 upon 2 root 2. और cos 45 निकालेंगे तो यहीं पर अंडर रूट में 1 plus cos 2 थीटा आएगा। These formulas we've already discussed. तो ये बन जाएगा root 2 plus 1 upon 2 root 2. अच्छा, we don't need to find anything else. Sorry, ये cos 22.5 है, 45 नहीं है। We don't need to find anything else because these are complementary angles. ठीक है, तो हमारा ये sin 22.5 भी है and this is cos of 67.5 also and this is sin of 67.5. This is easy. फिर आता है set 3, बता देता हूँ, फिर एक बार में नोट कर लेना। 15, 30, 45, 60, 75, 90। इसमें 90 पता है, 60 पता है, 45 पता है, 30 पता है, 15 और 75 देखना है। तो अगर sin 15 डिग्रीज निकालना है, so you can write it as sin of 45 minus 30 and you can apply your sin a minus b का formula. It will become root 3 minus 1 upon 2 root 2 and it is the same as cos 75 degrees. Sin 75 degrees is sin of 45 plus 30. It is root 3 plus 1 upon 2 root 2 and this is equal to cos 15 degrees. ये सारे नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ, बहुत पेशेंस के साथ ये करिए। एक रेशियो टेबल बनाइए, उसमें साइन, कॉस और टैन। अब टैन वाले सिर्फ आपको डिवाइड कर करके लिखने हैं, साइन और कॉस वालों को, और डिवाइड करने के बाद अगर रैशनलाइज करना पड़े तो रैशनलाइज कर दीजिएगा, बस इतना करना है। तो यू विल हैव अ टेबल ऑफ 0, 15, 18, 22.5, 30, 30, 36, 45, 54, 67.5, 72 and 90। एक पेज को हॉरिजॉन्टल रख के उस पे प्रॉपर तरीके से एक बार ये चार्ट बना लीजिए ढंग से, तो बहुत क्लियरली आपके पास बना रहेगा। यू कैन टेक 5-10 मिनट्स, डोंट वरी अबाउट टाइम, टाइम का भी कोई इशू नहीं है। अब आराम से करिए, अच्छे से बनाइए।
So we need to make the table for all three sets. सारा आ गया ना इसी टेबल में, कर तो दिया सारा कवर, लिखा तो है 0, 15, 18, 22 and a half, 30, 36, 45, 54, 67 and a half, 72, 90. Okay, sir.
हो जाए तो बोल देना बेटा। सर बोलो बेटा। सर आप टैन वाले का एक एग्जांपल दे दोगे सर, वो डिविजन वाले का? देखो, मोस्टली टैन वाले में आपको कुछ जैसे टैन 18 बनाना है, तो ये क्या बनेगा, साइन 18 अपॉन कॉस 18। यस सर। साइन 18 कितना है, √5। ये बनेगा, यस है ना। सर, इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब इसे ऐसे छोड़ना है छोड़ दो, नहीं तो अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 से देखते हैं रैशनलाइज करके अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको तो हम लिख सकते हैं पूरे ब्रैकेट में 6 माइनस 2√5 इंटू 10 माइनस 2√5 होल डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितना हुआ 20 अंडर रूट 80। अंडर रूट 80 को लिख सकते हैं हम 4 अंडर रूट ऑफ 5, ऊपर बनेगा 6/40 माइनस 8√5 अपॉन 4√5, तो 4 बाहर निकालने इसका तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10 माइनस 2√5 अपॉन, ऐसे ही कुछ आएगा और कुछ खास नहीं आएगा। वो ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो ऐसे उल्टा कर सकते हो। सर वैसे छोड़ देना। हम्म ठीक है सर।
सो हम्म हो गया। हम्म सबका हुआ? सर 2 मिनट। No, sir. क्या? Trigonometry is a very time taking process completing this chapter because बहुत सारी चीजें हैं बताने की एंड आपको बहुत आराम आराम से याद करना है। होपिंग आप लोग जो फॉर्मूलेज हैं वो याद कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। Done, sir. Just take 2 minutes to memorize whatever you've written. उसको पूरा मैप करके मेमोराइज करो।
Is it done? Yes, sir. Okay. So this is one thing that we have to do. ये आपको याद करने हैं. अगर ये याद है तो beneficial होगा आपके लिए definitely. Some special forms या cases. Next. हमने ये फॉर्म किए थे. ये हो गया था सर. ये हो गया था. यस सर. Yes, sir. Okay. Okay. Now. Another very, very important concept that you learn in trigonometry is this a sin theta plus minus b cos theta form. बहुत ध्यान से समझिएगा. देखो, हमें पता है, मैं रेंज के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं यहां पर. साइन थीटा का रेंज इज -1 to 1, राइट? और सिमिलरली फॉर कॉस ऑल्सो, दोनों का रेंज यही है. अगर हम साइन स्क्वायर थीटा करें या फिर कॉस स्क्वायर थीटा करें तो उसका रेंज हो जाएगा 0 to 1. ये समझ में आ रहा है? क्योंकि -1 से 1 के बीच के सभी नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दे विल बिकम 0 to 1, क्योंकि वो 1 को एक्सीड नहीं कर सकते. तो अब अगर सपोज आपके सामने क्वेश्चन है और मैं एक वेरिड सा क्वेश्चन बना रहा हूं एंड आई एम ट्राइंग टू reach where I want to actually to find range of following functions. इसमें first is f theta is 2 sin theta, 2 sin theta plus 3, let's say. Two sin square theta, 2 sin square theta plus 3, 2 sin square theta plus 3 cos square theta, 2 sin square theta plus 3 cos square theta plus 4. सारे टाइप के कवर कर दे रहा हूं इसमें. And this is our question. Let us say 2 sin theta plus 3 cos theta. इससे पहले वाले तो सारे ठीक है. ये है जिसके बारे में हमें बात करनी है. या फिर अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए आपके सामने 2 sin theta plus 3 cos theta plus 4, या प्लस की जगह माइनस आ जाए, वहां साइन आगे आ जाए, कॉस पीछे आ जाए, कुछ भी इस तरीके का हो, तो ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. इसके पहले तो ज्यादा कुछ है नहीं, उनको मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ. देखो 2 sin थीटा हो जाएगा -2 to 2, क्योंकि -1 to 1 का डबल करना है. इसमें -1 to 1 का डबल करके 3 ऐड करना है, तो ये 1 से 5 हो जाएगा. इसमें 0 से 1 का डबल करना है, तो ये 0 से 2 हो जाएगा. ये हो जाएगा 3 से 5, 0 से 2 में 3 ऐड करना है. इसके लिए आपको एक स्टेप करना पड़ेगा. डोंट डू दिस कि यहाँ 0 से 1 यहाँ 0 से 1 करके और सॉल्व कर लो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक समय पे 0 या 1 नहीं होते. तो व्हाट यू डू इज, यहाँ पर आप 2 sin स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर का 2 लिख दो, और एक जो cos स्क्वायर बच गया उसको एज इट इज लिख दो. तो ये हो जाएगा 2 + 0 to 1, दैट इज 2 to 3. ये तो 2 to 3 आ ही गया है. इसमें 4 और ऐड कर दो, सो दिस विल बिकम 6 to 7. ये पहले आप नोट कर लो, उसके बाद में लास्ट 2 की बात करता हूं. लास्ट 2 के लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा.
sir, done. So done. हो गया? Yes, sir. Okay, now let's come to this part जो हमें डिस्कस करना है. That is, अगर a function is in a sin theta plus minus b cos theta form, then how do we find the range? Now, in order to find the range of this, please understand, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा कि आप इसमें -1 to 1 रख दो, इसमें -1 to 1 रख दो और इनको ऐड वैड कर लो, वो नहीं काम करेगा. द रीजन इज कि जब ये -1 है तब ये -1 नहीं होगा, और जब ये 1 है तब ये 1 नहीं होगा, और जब ये 1 होगा तो ये 1 नहीं होगा. तो आप ये नहीं कह सकते कि वैल्यू इसकी -a + b से लेकर a + b तक होगी जब दोनों -1 होते हैं और दोनों +1 होते हैं. ये रॉन्ग आंसर है. तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू वन फंक्शन, मतलब एक साइन कॉस कुछ भी हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में हम ए और बी अपनी कन्वीनियंस से अपनी मर्जी से कहीं भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर. मतलब परपेंडिकुलर और बेस में, हाइपोटेन्यूज में नहीं. और इस एंगल को कुछ आप फाई बोल दो, अल्फा बोल दो, कुछ भी बोल दो. तो ये हो जाएगा √(a² + b². इस √(a² + b² से इस पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. ठीक है, ये एज इट इज रहने दो. ये a/√(a² + b² को अगर आप देखो तो ये cos फाई है, और ये sin थीटा है, और ये sin फाई है, और ये cos थीटा है. तो दिस बिकम्स √(a² + b² sin of थीटा ± फाई. ठीक है. नाउ साइन में कुछ भी हो, वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही आएगी, इसलिए अब इसकी रेंज हो जाएगी √(a² + b² into -1 to 1. So that becomes -√(a² + b² to √(a² + b². ठीक है. दिस इज द रेंज ऑफ दिस फॉर्म. और इसमें a और b इंटरचेंज हो जाए, साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाए, प्लस और माइनस इंटरचेंज हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला चेंज होते रहेंगे, प्लस वाले में प्लस होगा, माइनस वाले में माइनस होगा. अगर ए बी इंटरचेंज कर दिए या यहाँ उल्टा पुल्टा कर दिया तो हो सकता है साइन की जगह कॉस का फॉर्मूला बनेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा. कुल मिला के रेंज इतना ही आएगा, हमेशा याद रखिएगा. तो जैसे मैंने आपको दिया था f थीटा = 2 sin थीटा + 3 cos थीटा, तो अब इसका रेंज होगा √(-13 to √13). √13 कहां से आया, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर. और अगर इसी में वो बोला +4 करने के लिए, तो जैसे 2 sin थीटा + 3 cos थीटा + 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 4 - √13 to 4 + √13. नोट करो.
So done. Yes, sir. Done. हम्म हो गया. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. We'll stop here today. आप लोग जितना मैंने कराया है इसको ढंग से आज करिए. बाकी we'll continue on today's Wednesday ना. हाँ, Friday को अभी भी हमें it will take about 3 to 4 classes to finish everything. Not even 4. Probably पूरा next week भी लग जाएगा. Don't worry, बहुत सारा है करने को भी. अभी तो इक्वेशन स्टार्ट नहीं किया है हमने. अभी इसमें भी कुछ चीजें हैं वो कंप्लीट करनी है. फिर we will start with equations. Then we will do solutions of triangles. बहुत सारा है. So don't worry. अभी नोट ही करते जाओ आप लोग और याद करते जाओ. अब मैं कुछ I'll share some content. आप लोग उसको भी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. ओके, थैंक यू, बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू.